Very good afternoon, students. And today, in the last class, we finished with the chapter Indigo, which was the story of Champaran in the state of Bihar. Bihar elections are going on today. The results have to be announced. And today, after that, we are going to proceed with another poetry. So last poetry which we finished was an elementary school classroom in the slum, right? And so today we will be starting with another poetry with the name of Keeping Quiet by Pablo Neruda, right? So I am just going to tell you what is this poetry all about and what is happening, right? And then we are going to quickly read with the stanza so that later on I can paraphrase it. समझ गए? मैं आपको बता दे रहा हूँ नटशेल में कि इस पोइट्री में क्या है और क्या बताने की कोशिश करी गई है पाब्लो नेरूदा जी के द्वारा, और उसके बाद हम लोग इसकी टेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है? So the main thrust of the poem was the significance of mindfulness, introspection and retrospection, as these lead to attention, unity and brotherhood. ठीक है? It was an appeal to pause and really seize that what is said in a mundane flurry of human habit. People are led to blindly perform what is expected of them, while sadly not perceiving the impact to nature and society. Right? कुछ बात समझ में आई? Good. अभी बाकी की भी आएगी. The poet asks everyone to count up to 12 in their mind. The number 12 represents the hours of the day or the months of a year. He wants all of us to be calm and still. People across the nations have to unite together, so they shall not speak their own languages. Rather, they shall keep quiet and speak the language of silence. This will bring unity among all the humans on the face of the earth. For at last, one moment, no one shall move his arms either to signal or to fight or to argue with each other. We keep on knowing what is expected from us without thinking about anything else. सेल्फिशनेस के बारे में बताया है, और किसके बारे में बताया है? यूनिटी के बारे में बताया है, ठीक है? कि किस तरीके से हाउ वी कैन ऑल बी टुगेदर एंड स्पीक only and only one language, or if we do not speak any language then also, क्या हम अगर एक साथ चुपचाप खड़े हैं बिना कुछ बोले बिना कुछ कहे, हम बिना बोले बिना सोचे जाने बूझे जो भी काम हमसे उम्मीद करी जाती है वो हम पट करते रहते हैं, और सुबह से लेकर शाम तक पता नहीं 60,000, more than 60,000, this has been scientifically proven कि एक दिन में 24 घंटे के अंदर अंदर एक ह्यूमन ब्रेन में 60,000 से भी ज्यादा थॉट्स आते हैं. 60,000, more than 60,000. तो
आप समझ सकते हैं कि कैसे, क्या, किधर, बस थॉट्स तो थॉट्स हैं, कभी कुछ आ गया मन में, कभी कुछ आ गया, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। तो पाब्लो नेरुदा was born in 1904 and he died in 1973 is the pen name of Neftali Ricardo Reis Basualto, who was born in the town of Parral in Chile. ठीक है, Chile, Chile. Neruda's poems are full of easily understood images which make them no less beautiful. He won the Nobel Prize for Literature in the year 1971, 2 years before he died. In this poem, Neruda talks about the necessity of quiet introspection and creating a feeling of mutual understanding among human beings. ठीक है, यूनिटी हो गई। जो अभी तक we think of selfishness, but वो क्या चाहते हैं? यूनिटी बनाना चाहते हैं। ठीक है, now we will count to 12 and we will all keep still. अब हम 12 तक गिनेंगे और कोई भी रुकेगा नहीं। प्रॉब्ली जैसे कि एक घड़ी में 12 बजते हैं, एक दिन में 12 घंटे होते हैं, या फिर एक साल में 12 महीने होते हैं। तो कहते हैं कि नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। बिल्कुल चुपचाप सब काम छोड़ दीजिए, हाथ में जो कुछ भी है उसे रख दीजिए, एकदम शांति से बैठ जाइए और बैठ करके सिर्फ और सिर्फ 1 से लेकर के 12 तक की गिनती गिनिए। For once on the face of the earth, let's not speak in any language. सिर्फ एक बार अर्थ के लिए, धरती के लिए कोई और भाषा ना बोली जाए। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, बस 1 सेकेंड के लिए, क्षण भर के लिए रुक जाइए। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, इतना हाथों को मत हिलाइए, चुपचाप आराम से एक जगह पर खड़े हो जाइए, चाहे तो आंखें बंद कर लीजिए और एक ऐसी भाषा बोलिए जो कि पूरी दुनिया में कॉमन हो, पूरी दुनिया में समझी जाती हो। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट। कैसा वो क्षण होगा, कितना बेहतरीन वो क्षण होगा। विदाउट रश, विदाउट इंजन, बिना भीड़ भाड़ शहर की चह चह पै पै, बिना गाड़ियों के इंजन, साउंड, मशीनरी, बिना ये सब के, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। एक अजीब तरीके की कभी ना महसूस करी गई हुई फीलिंग्स हमारे अंदर आएंगी, क्योंकि उससे हमें पता लगेगा कि भाई कहाँ हम कितनी शोर शराबा, कितनी भीड़ भाड़, कितनी लड़ाई झगड़े और कैसी दुनिया में रहते हैं और कहाँ अचानक से ये चीजें बिल्कुल ही बदल जाती हैं। कहाँ पोएट कहते हैं कितने साल पहले उन्होंने इस पोइट्री में लिख दिया, अभी in 2020 we have experienced this COVID-19 situation and corona, when for once, एक बार तो ऐसा हुआ ही था कि सारी की सारी चीजें एकदम रुक गई थी। सब लोग घर में अंदर बंद, ना कोई गाड़ियों का शोर शराबा सड़कों के ऊपर, ना कोई मशीनरी की चर्निंग और मूविंग और साउंडिंग फ्रॉम द रोड्स, ना कोई लोगों के चलने की चहल पहल, ना कोई
सब्जी ले लो और सामान ले लो और कबाड़ी वाला और 2 रुपए किलो टमाटर और 10 रुपए का 100 ग्राम, और कोई भी ऐसी चीज नहीं हो रही थी। सब लोग शांत, सब लोग घर में, और अगर उसके बाद मोबाइल फोन्स भी रख दें, ये पोइट्री तो तब की है जब मोबाइल फोन्स का किसी ने शायद नोबडी वुड हैव ड्रीम्ड ऑफ देम, लेकिन तब पर भी उनकी जरा सोच को समझने की कोशिश करिए पोएट की। पाब्लो साहब कितने बेहतरीन पर्सन है। ये जो एक आई गिव एन एग्जांपल, पा मूवी देखी आप लोगों ने? नहीं देखी तो देखिए, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मूवीज टू एवर मेड। पा मूवी में एक सीन होता है जिसमें एक साइंस कंपटीशन चलता रहता है। तो वो साइंस कंपटीशन में सारे बच्चे कुछ न कुछ बनाते और सजा दिए जाते सबके मॉडल। एंड अभिषेक बच्चन जी वॉज द चीफ गेस्ट, और वो आते हैं और देखते हैं तो एक ग्लोब उन्हें मिलता है। ग्लोब वो देखते हैं तो उसे घुमा के देखते हैं तो पूरा का पूरा ग्लोब वाइट होता है। ग्लोब, वी ऑल हैव सीन अ ग्लोब, generally it is blue in color with all the states and political markings and sea in blue and the countries with the various colors, लेकिन वो पूरा का पूरा ग्लोब सफेद रंग का होता है, जिधर भी उसे पलटे जहां भी देखें व्हाइट। तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। he was playing the role of an MP, a member of parliament, big minister। तो वो कहते हैं कि ये बच्चे की क्या सोच है, पूरी दुनिया को एक कलर में, एक रंग में देखना चाहता है। उसी तरीके से इन द सेम मैनर, मैं बस कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, मेरे दिमाग में अभी ये आइडिया आया। उस मूवी में ऐसा बताया गया था और यहां पर भी पाब्लो साहब कुछ ऐसा ही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सब एक साथ हो जाएं, एकजुट हो जाएं, जरा सा अपनी ये भाग दौड़ भरी शोर शराबे वाली जिंदगी को 2 मिनट छोड़ करके ऐसा चुपचाप बिल्कुल एकदम आराम से बैठ जाएं, शांति से बैठ जाएं, मोबाइल को तो बिल्कुल ही स्विच ऑफ करके किनारे रख दें और बस सोचने की कोशिश करें, या सोचे भी ना, सिर्फ 12 तक गिनती गिन लें। राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12। तो जरा देखें क्या होता है, चुपचाप मन में बिना बोले। मुझे तो आप लोगों को बताना है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, अदरवाइज बिना बोले अगर आप ठीक है, गिनी 12 तक हम लोगों ने। तो अगर कोई एक ऐसा दिन आए, अब इंग्लिश है पूरे वर्ल्ड में कॉमन एक लैंग्वेज है। आप यहाँ से फ्रांस में फंस जाइए या थाईलैंड में चले जाइए या कहीं फिजी आइलैंड्स पे, ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में, अमेरिका में, कनाडा में, तो इंग्लिश इज वन लैंग्वेज विच इज सपोज टू बी अ ग्लोबल लैंग्वेज विच इज ऑलमोस्ट फाउंड एवरीवेयर। लेकिन क्या ये बात सच है कि वर्ल्ड की हर एक स्टेट, हर एक सिटी, हर एक डिस्ट्रिक्ट में इंग्लिश समझने वाले लोग होते हैं? हम बाकी दूर जाने की जरूरत नहीं है, त्रिनिदाद एंड टोबैगो या फिर अपने अंडमान एंड निकोबार तक भी जाने की आवश्यकता नहीं है। ऑब्वियसली वो लोग ना हिंदी ना इंग्लिश कोई भाषा नहीं समझते। कभी कभी कार्टून्स में आप लोगों ने देखा होगा जो पुराने आदिवासी लोग ऐसा करके कुछ अपनी साइन लैंग्वेज से बतियाते रहते हैं, बिकॉज दे हैव लैंग्वेज ऑफ देयर ओन, दे डोंट अंडरस्टैंड। तो उसी तरीके से हमारे इलाहाबाद में ही कोई फॉरेनर्स अगर आ जाए
तो आपको क्या लगता है कितने लोग उनकी भाषा समझ पाते हैं, कितने लोग नहीं समझ पाते? बहुत सारे ऐसे लोग हैं. आई बिलीव 80 not 80 90% of the people they would not be able to communicate with them in proper English even, कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, समझ नहीं पाते. इवन आगरा को अगर हम देखें तो आगरा इज ऑन अ बेटर कंडीशन देन अस, क्योंकि वहां पर राउंड द ईयर टूरिस्ट आते रहते हैं. तो वही बात वो कह रहे हैं कि एक ऐसी भाषा जो कि आज तक भी इस्तेमाल नहीं करी गई, चुप्पी की भाषा. हम सारी दुनिया के लोग अगर अपना बस 1 मिनट के लिए एक दिन डिसाइड कर लिया जाए कि भैया 31 दिसंबर 2020 को सुबह 10:30 पे पूरी दुनिया में ये संदेश अगर फैल जाए कि सब काम छोड़ करके सिर्फ 1 मिनट के लिए, सिर्फ 60 सेकेंड्स के लिए आप सब लोगों को चुप हो जाना है, कुछ नहीं बोलना, सिर्फ 1 मिनट के लिए. सिर्फ 1 मिनट देखते देखते पलक झपकते बीत जाता है. तो सोचिए जरा, अगर ऐसा हो जाएगा किसी दिन तो क्या होगा? राइट यू आर, जादू हो जाएगा, बिल्कुल एकदम मिराकिल हो जाएगा, कमाल हो जाएगा उस दिन अगर जब ऐसा हो जाएगा तो. लेकिन सारे लोग एक साथ हो तो जाएंगे. ये बात कहने की तो हो जाएगी कि सब लोगों ने एक साथ मिलकर के कुछ काम किया. लोग एक साथ हैं. USA just got their elections over and Joe Biden was elected the president. People have given him votes. He is a genuine candidate and I pray to God कि भाई इंडिया के लिए भी वो कुछ ना कुछ हो सकता है, सपोर्ट करें जरूर, बिकॉज ही इज अ थॉरो जेंटलमैन एंड अ जेन्युइन गाय. लेकिन कुछ लोग तो ऐसे भी थे कि जिन्होंने ट्रम्प साहब को वोट दिया और चाहते भी थे कि ट्रम्प साहब वापस आए. द सेम इज गोइंग ऑन विद द बिहार इलेक्शन. तो यूनिटी कहां हुई? यूनिटी बहुत कम है. उसी को वो जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? तो जरा सा फिर से आप इसको पढ़िए. नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल. अब हम 12 तक गिनेंगे और सब लोग चुपचाप हो जाएंगे. फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज. लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स so much. ठीक है, आगे बढ़े. कितना बेहतरीन. इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन. वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रिंगनेस. नो वन विल बी एबल टू बी इन द रश. कोई सड़क पे गाड़ियां नहीं होंगी, कोई फैक्ट्री में शोर नहीं होगा. No person will be harming any other living organism in that very moment. Everyone will be calm and quiet and united, and all the people who work endlessly will get some time to look at their injuries and the damage they have caused to their body. जो सारे के सारे लोग लगे हुए बिना बस उनको एक काम है उनका कि ठक 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 ठक. फैक्ट्रीज और कभी इंडस्ट्रीज में आप जा करके देखिए तो बहुत सारी होती. कार इंडस्ट्री में आप देख लीजिए, मारुति सुजुकी की मानेसर वाले प्लांट्स, और इनकी अक्सर डिस्कवरी चैनल पे पिक्चर्स और ये आती है, मैन एंड द मशीन. तो उसमें आप देखिए कि कन्वेयर बेल्ट होती है, जैसे कन्वेयर बेल्ट कहते हैं. तो क्या होता है कि लास्ट में मान लीजिए कि वो गाड़ी का ढांचा यहां से चला और सब कुछ जोड़ते जोड़ते आखिरी में उसमें फाइनल फिटिंग जा करके वहां पर गाड़ी कंप्लीट हो जाएगी. इधर से मान लीजिए एक ढांचा चल के आ रहा है, तो 2 इंजीनियर्स की ड्यूटी है कि एक जैसे ही सामने आई तो जल्दी जल्दी चिक 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 उसमें 4 बोल्ट इधर से 4 बोल्ट उधर से लगा दिए, फिर आगे बढ़ गए. उधर वाले लोगों की ड्यूटी है कि चक 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 1-2 दरवाजे इधर से लगा दिए. इधर वाले लोगों की ड्यूटी है कि 2 दरवाजे इधर से लगा दिए. जब उधर वाले दरवाजे लग रहे हैं तो यहां से जब गाड़ी चली तो वो सिर्फ एक चेसी है, जिसे चेसिस कहते हैं. चेसिस इज अ रॉन्ग वर्ड. It's actually called as a chassis. The last S is silent.
तो वो एक चेसी वहां से चली और यहाँ पर उसमें पेंच लगाए, इधर वाले पर्सन ने इधर से पेंच लगाए, इधर वाले पर्सन ने इधर से 2 डोर्स लगाए, इधर वाले पर्सन ने इधर से 2 डोर्स लगाए, फिर और आगे बढ़ी तो उसके अंदर सीट लगाई, फिर और आगे बढ़ी तो इधर से सीट लगाई, फिर और आगे बढ़ी तो उसमें हेडलाइट्स लगाई, शीशा लगाया। तो इस तरीके से करते करते जहां जहां पहुंचती है तो वहां वहां गाड़ी आगे बढ़ती रहती है। अब यहाँ पे जो पर्सन खड़ा है उसका काम है दोनों दरवाजे लगाना, राइट साइड वाले, या वो भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं, आगे वाला राइट साइड का दरवाजा लगाने का मेरा काम है, मेरे बगल वाले का काम पीछे वाले राइट साइड का दरवाजा लगाना। हर बार जब वो आएगी तो ये आगे वाला दरवाजा, आगे वाला दरवाजा, आगे वाला दरवाजा। इन्हें और किसी चीज से मतलब ही नहीं है, इन्हें सिर्फ आगे वाला दरवाजा लगाना है, इन्हें और किसी चीज से मतलब नहीं, उन्हें सिर्फ पीछे वाला दरवाजा लगाना है। तो इस तरीके की दुनिया में हजारों करोड़ों अरबों लोग हैं कि जो बिना अपनी बॉडी की चिंता किए जा रहे, दरवाजा लगाए जा रहे, रुकते ही नहीं भाई। उनका वो काम ही वही है, उनको अपने रोज की मजदूरी मिलती है। जब वो रोज जो है कम से कम फॉर एग्जाम्पल 100 दरवाजे लगाएंगे तब जाकर के उन्हें 500 रुपए मिलेगा, तब जाकर के उनके घर में चूल्हा जलेगा, खाना बनेगा। अगर वो आज के दिन, वो आदमी, वो मैन अगर आज के दिन काम ना करे तो वो अपने घर पे जाकर के अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को क्या खिलाएगा, क्या बताएगा? तो उसको काम करना जरूरी है। तो उसके पास अपनी चोट, उसी में कहीं उंगली दब गई तो उसको देखने का, मरहम लगाने का, दवाई लगाने का टाइम नहीं होता। तो वो उसके बारे में कह रहे हैं। वो पर्सन जो हर रोज अपने सर पे वो इतना बड़ा सा प्लेट लेकर के, वो चना जोर गरम वाले देखे आप लोगों ने, हाथ के नीचे ऐसे बड़ा सा एक डमरू की तरह ऐसे वो बनाए रहते हैं स्टॉल्स, है ना, और वो उसको ऐसे हाथ में दबाए रहते हैं और उसके ऊपर एक बड़ी सी प्लेट अपने सर पे एक कपड़े का ऐसे कोई रुमाल का ऐसे बना करके उसके ऊपर सर पे रख करके दिन भर ऐसे जाते रहते। जहां पे किसी ने बोला तो उसे रख करके तुरंत उसको उतारा और बनाने की कोशिश कर ली। तो सालों साल ये काम करते 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 उनकी बॉडी उस तरीके की बन जाती है। जो कुली हैं, जो सर के ऊपर ब्रीफकेस और अटैची उठाते हैं, उनकी कहीं ना कहीं हाइट उनकी स्टैग्नेंट हो जाती है, रुक जाती है उनकी ग्रोथ। तो इस तरीके के बहुत सारे लोग हैं कि जिनको समय ही नहीं मिला है। और जिस किसी दिन अगर ऐसा हो जाएगा कि लोग अपने आप को सिर्फ थोड़ी देर के लिए रोक लें, एक क्षण भर के लिए रोक लें, 1 मिनट भर के लिए रोक लें और सिर्फ 12 तक गिने, सब काम छोड़ के अपने हाथ ऊपर उठा करके, सारा काम छोड़ करके सिर्फ एक लैंग्वेज, चुप्पी की लैंग्वेज में सिर्फ चुपचाप होकर के आंख बंद करके खड़े हो जाएं, तो क्या वो ऐसे लोग जिनको अपनी चोटों तक पे, जख्मों तक पे दवा लगाने का टाइम नहीं मिला है, क्या उन लोगों को टाइम मिल नहीं जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। क्या ऐसे लोग जिनको ये बात देख करके समझ में नहीं आई थी, क्या उन्हें ये बात समझ में आ जाएगी कि भाई जो आज तक वो काम जो उनसे उम्मीद करी जाती है, वो बस बैल की तरह, शीप की तरह वो एक काम करते चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। द सेम थिंग हैपेंस एट ईच एंड एवरी प्लेस। क्या उस पर्सन को अधिकार नहीं है कि वो उस काम के अलावा कुछ और सोचे? क्या उस पर्सन को अधिकार नहीं है कि वो जैसा पैदा हुआ था वो बस उतना ही कमा पाए कि जितना रोज कमाते हैं, रोज अपने परिवार को खिलाते हैं और रोज फिर वो शाम को खत्म हो जाते हैं, कल सुबह से उठ करके फिर काम करेंगे, फिर मेहनत करेंगे, फिर कमाएंगे, फिर खिलाएंगे? क्या जिंदगी है? हम लोगों को भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने हमें थोड़ी सी बेटर लाइफ बख्शी है। वी शुड एवरी डे, जो प्रेयर हम लोग करते हैं हमेशा भगवान जी से मांगते ही रहते हैं, ये दे दो, वो दे दो, ऐसा दे दो, वैसा दे दो, इनका सोनाली का नंबर दे दो भगवान, इनको पटवा दो, इनको ये करवा दो, एग्जाम में पास करवा दो, बैलेट दिलवा दो, अच्छी नौकरी दिलवा दो, बड़ी स्वाइन की बाइक दिलवा दो, बढ़िया जो है मसल जो है दिलवा दो, 6 पैक ऐप दिलवा दो। लेकिन कभी थैंक यू नहीं बोलते भगवान को। आपने जितना भी दिया बस बहुत दिया, हम उतने ही में खुश हैं प्रभु। बस इतनी ही प्रार्थना बनाए रखिए कि कोई अगर हमको सब चीजों का बस काम चलाने भर का आराम दे दीजिए
और कोई अगर पर्सन हमारे दरवाजे आए तो इतना रहे कि हम उसको भी 2 रोटी खिला सकें। तो ऐसा कोई सोचता नहीं, सब अपने काम में ही बिजी रहते हैं। सेल्फिशनेस हम लोगों के अंदर कूट कूट के भरी हुई है। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, और जब ऐसा होगा तो वो मछुआरे जो ठंडे समुद्र में भाला और चाकू लिए, हम लोग कहते हैं, कभी भी देखते हैं कोई भी पर्सन ऐसा नेगेटिव काम कर रहा होता है तो हमारी एक मन में उसके प्रति एक नेगेटिव, एक गलत छवि बनी हुई होती है। क्यों? हम उससे कभी ये नहीं सोचते, हम बस ये सोचते हैं कि देखो कितना निर्दयी आदमी है, बेचारी मछलियों को कितना नुकसान पहुंचा रहा है, कितनी चोट पहुंचा रहा है, कितना बदतमीज आदमी है। हम कभी ये नहीं सोचते कि यार बदतमीज आदमी क्या है, वो उसका काम ही मछली पकड़ना है, अगर नहीं मछली पकड़ेगा, नहीं मारेगा तो वो क्या काम करेगा। एक कसाई है, एक बुचर है, अगर वो बकरा नहीं काटेगा तो उसको पैसे कहां से मिलेंगे, वो और कोई काम नहीं कर सकता। तो फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म, लेकिन जब ऐसा हो जाएगा, जब ये 60 सेकंड के लिए, ये 60 सेकंड एक्चुअली पोएम में नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूं। जब ये इतनी देर के लिए कोई आदमी रुक जाएगा, बिल्कुल सब चीजें थम जाएंगी, कोई किसी से बोलेगा नहीं, कोई चीज का शोर नहीं होगा, कोई आदमी काम नहीं करेगा, कोई मशीन नहीं चलेगी, कोई गाड़ी नहीं चलेगी, कोई किसी को मारेगा नहीं, तब वो मछुआरे भी शायद वो वेल्स को नहीं मारेंगे। जो शार्क्स को मार देते हैं, वेल्स को मार देते हैं, शायद वो उन्हें नहीं मारेंगे। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, और जो लोग नमक इकट्ठा करते 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 उनके हाथ बेचारों के गल जाते हैं, उनको समय ही नहीं होता कि वो अपने हाथों को देख सके या उस पर दवा लगा सके, वो वही काम करते करते वहीं मर जाते हैं। तो उनको भी शायद थोड़ा सा मौका मिल जाएगा दवाई लगाने का, मरहम पट्टी करने का। Those who prepare green wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. वो लोग जो कि हरी लड़ाइयां लड़ते हैं, गैस की लड़ाइयां लड़ते हैं, आग से लड़ाइयां लड़ते हैं, और जिनकी जीत तो होती है लेकिन उस जीत में कोई और शामिल नहीं होता, उनके सारे आदमी मारे जा चुके होते हैं, वो जीत भी गए तो क्या हुआ, बाकी सारी सेना तो मर गई। वो लोग भी सब साफ सुथरे कपड़े पहनकर भाई भाई की तरह बाहों में बाहें डाले, साथ साथ शेड में, धूप में नहीं शेड में, मतलब छांव में। अभी बताता हूं आपको छांव का क्या मीनिंग है। सिर्फ छांव में चुपचाप बैठे रहेंगे, बिना कुछ काम किए हुए, बिना एक दूसरे। द ग्रीन वेल्थ of nature by deforestation or mining or fishing in the deep sea. So the fisherman in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. अब ये जो मछुआरे हैं, मछली पकड़ने वाले हैं, ये लोग अब उन मछलियों को नहीं मारेंगे, उनकी जान नहीं लेंगे, और जो लोग नमक इकट्ठा करते, सॉल्ट इकट्ठा करते, आप जानते हैं कि नदी के किनारे द सी वाटर इज वेरी मच सलाइन, सो wherever there are people who dig holes on the beach of the sea, and onto those holes all that water accumulates and then it dries up. तो फिर उसे ड्राई करके फिर फाइनली फैक्ट्री में ले जाके उसे और वैक्यूम इवेपोरेट किया जाता है, और उसे ड्राई करके फर्दर रिफाइन करके फिर वो सॉल्ट बन जाता है। तो यहाँ पर वो इसी बात को बताना चाहते हैं। अगर हम एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं, सेकेंड स्टैंजा की बात करें तो इट वुड बी हार्ड हैंड से जहां पे ये यूज हो रहा है, तो यहाँ पर हमारे पाब्लो नेरुदा जो पोएट हैं, वो एक्चुअली में कहना चाहते हैं कि नो वन विल बी इन अ रश, and there will be all the work going on, everyone will be calm and quiet and united with each other in a strange atmosphere, right? It will be strange because it has never happened earlier, क्योंकि अभी तक लोग सारे के सारे अपने काम में बिजी रहते थे, बिजी, and they have never been able to understand the value of being in harmony, right?
So no person will be harming any other living being either for food or to earn his livelihood. All the people who work endlessly will get some time to look at their injuries and the damage they have caused on their body. Which means कि अभी तक जो लोग आज तक जो काम करते आए हैं, जो काम करते रह रहे हैं, वो काम से उन्हें छुटकारा मिलेगा। ठीक, फिर नेक्स्ट वाले स्टैंडा में उन्होंने कहा है पीपल हु एक्सप्लॉइट द ग्रीन वेल्थ ऑफ नेचर ऑफ डिफॉरेस्टेशन के बारे में उन्होंने कहा है माइनिंग और फिशिंग इन द डीप सीज एंड द सोल्जर्स हु यूज वेपन्स टू किल फेलो ह्यूमन बींग्स नीड सम टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट इनटू द consequences ऑफ देयर एक्शन। अभी कल परसों हम लोगों ने देखा फिर से लड़ाई झगड़े में कुछ what do you call terrorists and some people who do not want harmony to live along, ऐसे कुछ और लोगों को हमने देखा कि जिनको भगाया गया है, जिनको इस बात का एहसास दिलाया गया है कि जो वो कर रहे हैं, लगातार सोल्जर्स भी गोलियां चला रहे और कोई भी पर्सन अपना काम कर रहा है, उन्हें यहाँ तक इतने लगातार हम अपने काम में मसरूफ हो गए हैं, बिजी हो गए हैं, ऑक्यूपाइड हो गए हैं कि हमारे पास एक्चुअली में टाइम ही नहीं है कि हम किसी और चीज के बारे में सोच सके, क्योंकि हम लाइफ की रश में आ गए हैं। अगर काम नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे तो पैसे कैसे कमाएंगे, पैसे नहीं कमाएंगे तो अच्छे कपड़े, अच्छा घर, बड़ा मकान, अच्छी गाड़ियां, स्वयं की बंगलोज और द ट्रिप्स टू फॉरेन, ट्रिप्स टू टूरिस्ट अट्रैक्शन, ये सारी चीजें कैसे करेंगे। तो इस होड़ में हम जिंदगी की रियल मीनिंग ही भूल गए हैं, सिर्फ भागने दौड़ने में लगे हुए हैं। He wants them to put on new clothes, to adopt new approach towards life and to realize that killing so many people is not a victory. किसी को मार देना फिश के पिकल बनाने के लिए, फ्रोजन फिश के लिए, फिश का कारोबार करने के लिए या सॉल्ट का कारोबार करने के लिए जो इतनी ढेरों सैकड़ों करोड़ों फिशेस को मार दिया जाता है, पकड़ लिया जाता है, दबोच लिया जाता है, कोई निर्जीव जानवर, एनिमल्स को मार दिया जाता है उनकी स्किन के लिए, इसमें कोई जीत नहीं है, इसमें कोई विक्ट्री, कोई बहुत बड़ी बड़कियत नहीं है कि आपने जो है उनको मार करके और बहुत बड़ा हस्तिनापुर जीत लिया है। नो, he wants all of us to unite as one, consider one enemy to be our brother. He is promoting brotherhood and peace and unity, and he does not want us to stop our work but to take some time and analyze the results of our deeds. यही बात जो इन्होंने कहा, fishermen in the cold sea would not harm whales, the man would gather salt and would look at their hurt hands। ऐसा समय तब आएगा जब वो लोगों को नहीं मार रहे होंगे। Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, put upon clean clothes, अभी मैंने बताया आपको, and walk about with their brothers in the shade doing nothing। वो सारे लोग जो हमेशा मार काट में, गैस वॉर्स में, फायर वॉर्स में और इस सारी चीजों में लगे रहते हैं, लोगों को मारने में, नुकसान पहुंचाने में, जीतने में, तबाह करने में, वो सारे लोगों को भी मौका मिलेगा जरा सा अपने अगल बगल देखने के लिए कि सी व्हाई हैव वी सेंट दिस ऑन दिस अर्थ। हम सारे लोगों को अर्थ पर क्यों भेजा गया है। पैब्लो नेरुदा कहीं ना कहीं अपनी इस पोइट्री कीपिंग क्वाइट से हमें इस बात के बारे में बताते हैं। वेदर यू टेक अप एनी sacred book, whether be it the Srimad Bhagavad Gita or whether be it the Quran or the Bible or the Guru Granth Sahib or the Ramayana, any or the Vedas, the most important thing, if you would be able to conclude to an answer, that is going to be to live in harmony and just keep on doing your work and praying and thanking to God. Only this two things, living in harmony, actually that harmony is the love. That is that nonsense is not the love which has been portrayed in the movies just for the sake to mint money.
That is not love, absolutely no. Love is something which you see a small pup crying in the cold, and you just went and you took up that pup. पपी को आपने गोदी में उठा लिया, थोड़ा सा उसे सहला दिया, कोई एक पुराना आपके पास ब्लैंकेट था उसमें उसे रैप कर दिया, थोड़ा सा उसे दूध दे दिया पीने के लिए, तो ये दिस इज लव, दिस इज लव, दिस इज हार्मनी। इसी चीज के बारे में हमें बताया गया है, लेकिन हम सारे के सारे लोग ये दुनिया की बाकी की चकाचौंध में, बाकी के मेले में इतने ज्यादा बिजी और इतना ज्यादा फंस जाते हैं कि हम अपनी जो जिंदगी का मेन मकसद है, जिसके लिए गॉड ने हमें यहां भेजा है, उसे हम सॉल्व ही नहीं कर पाते। At the end of it all, you will find money at the end of most and most of the things. इन्होंने ऐसे से ऐसा कर दिया, ऐसे से ऐसा कर दिया, पॉलिटिक्स में ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। Why? What? For what sake? Just for the sake of money. तो हम, मेरे हिसाब से, they are not human beings. आप अगर कोई काम करिए, पूरी ईमानदारी, पूरी शिद्दत, पूरी लगन से करिए, और काम करना हमारा धर्म है, काम करते रहिए। फल की चिंता is to God. He has already written what you are going to get. You will get everything. Nobody can stop you. If you are to get a Ferrari, so you will get a Ferrari. Nobody can stop you. But just for the sake of that, you should not disturb anything else. And you should not acquire any wrong means. And you should just thank to God कि God आपने हमें कम से कम हाथ पैर सलामत दिए, आयुष सलामत दी, कि जिससे हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हमें खाने के लिए 2 रोटियां आपने दी। Every time, whenever you get time, you should just pray to God. Nothing else. तो जो उनके सारे सर्वाइवर्स हैं, कभी उनके साथ साफ सुथरे, बिना खून लगे, खून के धब्बों वाले, बिना कपड़े पहन करके, कभी जो है भाइयों की तरह गले में बाहें डाले वाघा बॉर्डर पे, कभी पाकिस्तान और इंडिया के सोल्जर्स दोनों एक साथ कंधे पे कंधा मिलाकर क्यों नहीं चल सकते? जरा चल करके तो देखिए, उन्हें भी भगवान ने बनाया, हमें भी भगवान ने बनाया। ठीक है, लड़ाई अपनी जगह है। What I want should not be confused with total inactivity. जो मैं कहना चाह रहा हूं वो बिल्कुल इससे कंफ्यूज ना किया जाए कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आप कोई काम ही ना करो। भगवान ने हमें यहाँ भेजा है, पीस में, हार्मनी में रहने को कहा है। अब हम बुचर हैं, हमारा काम बकरा काटना है, तो हम कुछ काम ही ना करें क्योंकि बकरा काटना गलत है ना। यहां पर आई डिफर विद यू, यहां पर आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि जो जिसका जीविकोपार्जन है वो उसे नहीं रोक सकता। What I want that should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि जिंदगी को लोग अपने तरीके से, अपनी स्टाइल से, अपनी इच्छा से जिएं। If we are not towards this death, क्या कहना चाहते हैं इस पैराग्राफ में? All human beings were endlessly with the aim of completing all their tasks. I told you already. They are driven by the target of survival and the threat of death. So they are in a mad rush to accomplish all their work. He says that perhaps if they pause for a while, they can appreciate their achievements and their life would become even much happier. He also suggests that by keeping quiet, we will be able to understand the true purpose of our life. आ गया यहाँ पर आपका टाइटल ऑफ द पोइट्री। चुपचाप रह करके आप जिंदगी को जितना और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट दैट you are given 2 ears and 1 mouth. So it is but obvious that mouth should be used less and the ears should be used more. Just have a look around you. If you just closely and silently observe, you will be definitely able to understand what life is all about and how beautiful life is. हम कभी ऐसा सोचते ही नहीं। I want no truck with death. पाब्लो कहते हैं, इस पोइट्री के पोएट साहब कहते हैं कि मुझे कोई एक ऐसा ट्रक नहीं चाहिए जिसके ऊपर डेथ का इल्जाम हो। एक छोटा सा पपी हो, चाहे एक छोटा सा चूहा हो, चाहे कोई आदमी हो, मुझे कोई भी एक ऐसा ट्रक सॉरी दुनिया में
नहीं हो कि जिसके ऊपर मौत का, डेथ का धब्बा लगा हो. If we were not so single-minded about keeping our life moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening our lives, threatening ourselves with death. अभी अभी मैंने आपको बताया. Perhaps the earth can teach us when everything seems dead and later proves to be alive. Now I'll count up to 12 and you keep quiet and I will go. अर्थ से हमें एक्चुअली सीखना चाहिए. The poet suggests us to take a teaching from the nature, Mother Earth. As the earth undergoes changes in winter, everything freezes, becomes lifeless. But after some time, the season changes again and everything comes back to life again. Similarly, taking a pause and introspecting with our life will give us a new meaning, a true meaning. We will be able to understand the purpose of our life. It will be like a rebirth of a soul. The poet has conveyed to us all, the people, the purpose of this message, and also he asks them once again to take a pause, to count till 12 and walk out of the scene, keeping the scene open for all the people on the earth to experience this for the future times to come. Now, this is it, this is all. इतनी छोटी सी ये हमारी पोइट्री है और मैं यहीं के यहीं आप सभी लोगों को, all my spectators, I want you all just to give me half a minute and I will count to 12 and you just keep quiet and you'll see that I'll be gone. And just quietly, just be in peace, do nothing, just for mere 12 seconds, right? So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12.